Good morning, guys. This is Sheikh Shakir, your biology teacher. I welcome you all in this special course in which we are doing the animal kingdom, and we have started with the general aspects of the animal kingdom. And in the previous lectures, we have completed a few general aspects of animal kingdom, and today we will continue with the general aspects of animal kingdom. In the previous lecture, we have completed habitat of animals and levels of organization. In today's lecture, we will start with the body plans. That is the next general aspect of animals. Uh, as you all know, that all living organisms are made up of cells, and cells are the structural and the functional and the fundamental units of all living organisms. हर कोई जो living organism है, they are made up of cells. Now, as far as multicellular organisms are concerned, the multicellular organisms are those organisms which are made up of hundreds of cells. What is the arrangement of cells in a multicellular organism to form the body? How they are arranged in a multicellular organism to form the body, whether they form tissues or organs and organ systems or not. On this basis, animals have developed different body plans. First, body plan, simply arrangement of cells in a multicellular organism to form the body. How they are arranged? On the basis of this, the animals exhibit three types of plans. That means cell arrangements. The first type, as you can see on the screen, is cell aggregate type of body plan. And second type is blind sac body plan. Third one is tube within a tube body plan. We will discuss these body plans one by one. First of all, let us take the cell aggregate body plan. Cell aggregate, as the name indicates, aggregation means cluster of cells. When there is a cluster of cells, the organisms will be multicellular, but cells are present in clusters. No tissues are formed, no organ systems are there. Simply, इसमें जो cells होती हैं, they are present in clusters. वो tissues नहीं बनाते हैं, ना ही वो organs बनाते हैं, और ना ही वो organ system बनाते हैं. Simply an aggregation of cells is there, and they perform all the metabolic processes, and they do not form tissues, they do not form organs. अगर tissues, organs ये सारे नहीं हैं, तो वहां पर division of labor भी नहीं होता है, या ये कह सकते हैं बहुत कम होता है. That means a little division of labor is found in this very plan of body. यहाँ पर you can see in this diagram, here is the one cluster of cells, other cluster of cells. These are all clusters of cells, and they do not form the tissues, they do not form the organs. They perform all metabolic processes in this cluster. ऑर्गन्स टिश्यूज नहीं होते इसमें, ठीक है, और डिवीजन ऑफ लेबर भी इतना ज्यादा नहीं होता है. लिटिल डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड देयर. डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स सेल्स परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज कॉल्ड द सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान. Now, in which phylum you will find this type of body plan? Only one phylum, that is the phylum Porifera, in which we study the sponges. ठीक है, एक ही फाइलम में सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान है जिसमें ऑर्गन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होते, सिंपली क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है. तो वो है पॉरीफेरा, जिसमें हम स्पॉन्जेस को स्टडी कर लेते हैं. आई होप कि सेल एग्रीगेट प्लान इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, which is the blind sac body plan. First of all, let us try to understand what is blind sac means. sac का मतलब होता है थैला, ठीक है. sac का मतलब होता है थैला, and in every this sac there is only one pore, one opening. ठीक है, आपके पास थैला होता है जिसमें आप मार्केट से सामान ले आते हो, उसमें कितनी ओपनिंग्स होती है? ऊपर ही एक ओपनिंग होती है, नीचे कोई ओपनिंग नहीं होती है, वरना सामान गिर जाएगा. तो इस तरह के आप वो सैक जिसमें एक ओपनिंग एक ही होगी, उसको आप कहते हैं ब्लाइंड सैक. उसी ओपनिंग के थ्रू आप चीजें अंदर डालोगे, उसी ओपनिंग के थ्रू आप चीजें बाहर भी निकालोगे.
ठीक है। इस तरह के जिन ऑर्गेनिज्म में इस तरह थैले जैसा बॉडी प्लान होता है कि सैक लाइक थैला जैसा होता है और उसमें एक ही ओपनिंग होती है, जिस ओपनिंग के थ्रू चीजें अंदर भी डालते हैं और चीजें बाहर भी निकालते हैं। इस तरह के बॉडी प्लान को कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. So that means you can see in this diagram, this is the animal and this is the body cavity inside or space inside. Only one opening is there here in the middle. ठीक है. This opening acts as mouth for ingesting the food and this anus for ingestion of the undigested food. ठीक है. तो इस वाले प्लान में जो सेल्स होते हैं वो टिश्यूज बना लेते हैं. ठीक है. एंड टिश्यूज विल कंबाइन टू फॉर्म प्रिमिटिव ऑर्गन्स मींस ऑर्गन डेवलपमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेज. ठीक है. तो टिश्यूज कंबाइन, सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म द प्रिमिटिव ऑर्गन्स. अगर ये टिश्यूज ऑर्गन्स है वहां पर, दैट मींस डिवीजन ऑफ लेबर मस्ट बी देयर. तो डिवीजन ऑफ लेबर भी होना चाहिए वहां पर. ठीक है. तो इस बॉडी प्लान में आप देखोगे यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर भी आपको देखने को मिलेगा. Now where you will find this? Only in two phylums. Phylum Coelenterata, in which we study Hydra, this jellyfish Areola, sea anemone and Platyhelminthes, जहाँ पर आप tapeworms को study करते हैं. ठीक है. तो blind sac body plan is that type of body plan in which there is only one opening in the whole body that acts as a mouth for ingesting food as well as anus for removing the waste materials. And in this type of body plan, cells combine to form tissues and tissues combine to form primitive organs. So division of labor is also there. ठीक है. And we will find this type of body plan in only two phylums, phylum Coelenterata and phylum Platyhelminthes. ठीक है. I hope blind sac body plan is clear now. Now let's move on to the next one, which is the tube within tube body plan. Tube within tube. That means two tubes are there. First outer tube, larger tube, and second inner tube. That means बड़ा ट्यूब, इसके अंदर एक छोटा ट्यूब. That is why we call this as tube within a tube body plan. For example, you can see in this diagram, this is the outer cylinder जैसा पाइप जैसी आपको लग रही है. This is the outer tube. Say for example, this is the outer tube. और इसके बीच में देखोगे आप, इसके बीच में एक और ट्यूब है. ठीक है. दैट मीन्स ट्यूब विद इन ए ट्यूब. एंड इन दोनों ट्यूब्स के दरमियान एक स्पेस रहती है. दिस स्पेस इज कॉल्ड द बॉडी कैविटी, या सिलोम भी कहेंगे आप इसको. ठीक है. इस तरह के बॉडी प्लान को आप कहते हैं ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान. हमारी बॉडी में भी यही होता है. लेकिन अब आप कहोगे हमें तो कोई ट्यूब नहीं दिख रहा है, ना तो बाहर से ना तो कोई अंदर से. हमारी जो बॉडी वॉल होती है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हो, फिश में भी देख सकते हो, ये जो बॉडी वॉल है ये एक ट्यूब बना लेता है. इस बॉडी वॉल के अंदर हमने क्या रखा होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हो आप उसको. ठीक है. तो बड़ा ट्यूब जो बॉडी वॉल है, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल छोटा ट्यूब है. ठीक है. उन दोनों के दरमियान स्पेस है जिसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी. तो इस तरह के बॉडी प्लान को कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. तो यहाँ पर आप देखो, जो अंदर वाला ट्यूब है उसमें ऊपर एक ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड माउथ, एंड नीचे एक ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड द अनस. That means in these animals the digestive system is complete, having mouth as well as anus. Mouth for ingesting the food and anus for the removing the waste materials from the body. And of course ये ऊपर वाला level है, that means blind sac से ऊपर tissues, ये cells will combine, they will form tissues will combine, they will form organs will combine, they will form organ system. Here the full division of labor is found in this very body plan. ठीक है. नाउ कहां पर आपको मिलेगा, किस किस फाइलम में आपको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, सॉरी ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलेगा? फ्रॉम एस्केलमेंथीज एक्सेप्ट पॉरिफर्स, सिलेंट्रेट्स एंड प्लेटहेलमेंथीज. उसके बाद कौन सा स्टार्ट हो जाता है, एस्केलमेंथीज, या जिसको आप राउंड बॉडी एनिमल्स. फ्रॉम एस्केलमेंथीज टिल कॉर्डेट्स, ऑल द फाइलम्स कमिंग इन बिटवीन, दे शो ट्यूब विद इन बॉडी प्लान. ठीक है. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. एस्केलमेंथीज से कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम्स आते हैं, इन सब में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, इंक्लूडिंग वी पीपल. ठीक है. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया. वंस मोर आई विल लिटिल रिवाइज दिस. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मीन्स टू ट्यूब्स आर देयर, आउटर ट्यूब एंड इनर ट्यूब. Outer tube acts as a body wall and inner tube is the digestive tract.
Between these tubes there is a space called the सीलोम और बॉडी कैविटी, जिसमें बाकी ऑर्गन्स लगे रहते हैं, ठीक है। वो जो इनर ट्यूब होता है इसमें दो ओपनिंग्स होती हैं। वन ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ ऑन द अपर साइड, दिस इज फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड, अनदर इज कॉल्ड एनस दैट फॉर ऑन लोअर साइड, दैट इज फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल। दैट मींस digestive system is digestive tract is complete. Where you will find only from phylum Scalmenthes roundworms till chordatus, इन जितने भी phylums आते हैं Scalmenthes से chordatus वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फिश में भी देख सकते हो आप, अंदर एक ट्यूब है, ये इस वाले ऊपर वाले साइड में ये माउथ होगा, ये नीचे अनस होगा, अंदर एक ट्यूब है, बाहर एक बॉडी वॉल है। इस तरह के बॉडी प्लान को हम कहते हैं ट्यूब विद ट्यूब बॉडी प्लान। नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ कि जब ब्लास्टुलेशन होती है, एम्ब्रियो जब बनता है, एम्ब्रियो में एक ओपनिंग होती है जिसको आप कहते हैं ब्लास्टोपोर, ठीक है। क्या अब एक जब एम्ब्रियो से फिर नया इंडिविजुअल बनेगा, क्या सबसे पहले उस पोर से माउथ बनता है या अनस बनता है? उस बेस पे इस प्लांट के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोटियोस्टोमिक and second is the deuterostomic. Proteostomic, as the name indicates, pro means first, stome means mouth. That means here mouth will be formed from the blastopore. I'll show in the diagram. That means सबसे पहले माउथ बनेगा, उसके बाद बनेगा कहीं उससे एनस। ड्यूटेरोस्टोमिक का मतलब होता है, ड्यूटेरो मीन्स सेकंड एंड स्टोमिक मीन्स माउथ। दैट मीन्स माउथ बनेगा लेकिन बाद में, पहले क्या बनेगा? एनस, ठीक है। तो प्रोटियोस्टोमिक आपको देखने को मिलेगा एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स। On deuterostomic, echinodermates, hemichordates and chordates. Let us try to understand this from a diagram. यहां पर आप आराम से समझ सकते हो, सॉरी, ये है फॉर एग्जांपल, ये ब्लास्टो एम्ब्रियो है, ये ब्लास्टोस, ये इसका ब्लास्टोपोर, ये ओपनिंग है, ये एम्ब्रियो है, ये ब्लास्टोपोर है ओपनिंग। अगर इस ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप हो गया पहले, वी कॉल दिस एज प्रोटियोस्टोमिक। यहां पर देखो आप, इस साइड में, राइट साइड में, ये भी ब्लास्टोपोर ही है, लेकिन इससे क्या बनता है? अनस, माउथ नहीं, माउथ बाद में बनता है, ठीक है। इसको कहेंगे deuterostomic. तो proteostomic animals are those animals in which mouth develops from blastopore first and anus develops later on, and deuterostomes are those animals in which anus develops from blastopore and mouth develops later on away from the anus, ठीक है। proteostomic में arthropods, annelids and molluscs, deuterostomic में chordates, hemichordates and echinodermates, ठीक है। I hope this is clear now. Now let us move on to the next this character, that is the symmetry. What is a symmetry? Symmetry means balanced arrangement of parts of an animal. ठीक है, अगर एक एनिमल है उसमें जो डिफरेंट अपेंडेज है, डिफरेंट एक्सटर्नल पार्ट्स है, वो एक बैलेंस्ड अरेंजमेंट में, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में जितने हैं राइट साइड में भी उतने ही है। फॉर एग्जांपल, हमारी लेग्स दो होते हैं, आर्म्स दो होते हैं, ईयर्स दो होते हैं, आईज दो होते हैं, नॉस्ट्रल्स दो होते हैं, ठीक है। अगर बॉडी के हिस्से करेंगे तो बराबर हिस्से हो सकते हैं, ठीक है। बराबर मतलब इसमें जितने पार्ट्स आएंगे दूसरे में भी उतने ही पार्ट्स आने चाहिए, ठीक है। तो अब वो एनिमल्स जिनमें बॉडी के दो हिस्से नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी के बिल्कुल भी दो हिस्से नहीं, बॉडी के हिस्से हो सकते हैं इनके, लेकिन बराबर दो हिस्से नहीं हो सकते हैं। Those animals in which body cannot be cut into two equal parts through any plane, किसी भी तरीके से आप उस एनिमल के दो बराबर पार्ट्स नहीं कर सकते हैं, उस तरह के बॉडी प्लान, सॉरी, एनिमल को आप कहते हैं एसिमेट्रिकल। ये आप यहां पर देखिए, ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा इज हैविंग एन इरेगुलर बॉडी स्ट्रक्चर, कोई रैंडम स्ट्रक्चर होता है। इस एनिमल के आप दो हिस्से किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, काट सकते हो, चाकू से काट लो, हिस्से तो हो जाएंगे, लेकिन दो बराबर हिस्से नहीं हो सकते इसके। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एनिमल एज एसिमेट्रिकल एनिमल, ठीक है। वो एनिमल्स जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं हुई, सिमेट्री मतलब जिसके आप दो हिस्से नहीं कर सकते, बराबर बराबर हिस्से नहीं कर सकते, वी कॉल दैट एनिमल एज एन एसिमेट्रिक एनिमल। जैसे स्पॉन्जेस है, उनके भी वो इरेगुलर स्ट्रक्चर, एमीबा है इरेगुलर स्ट्रक्चर है, स्नेल है ये गोल मोल स्ट्रक्चर होता है, इसके भी दो हिस्से नहीं हो सकते हैं बराबर, ठीक है। नेक्स्ट होता है सिमेट्रिकल एनिमल। सिमेट्रिकल का मतलब, इफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी डिवाइडेड into two equal parts
थ्रू बाय वन आर मोर प्लेन्स। डिफरेंट तरीकों से आप उसके दो बराबर हिस्से कर सकते हैं। यहाँ पर ले लीजिए आप, जो मैंने डायग्राम में दिखाया, ये क्या है, ड्रोसोफिला है, एक फ्लाई है, इसका आप बीच में से कट डालिए, ठीक है, इसके दो बराबर हिस्से हो जाएंगे, आधे पार्ट्स इसमें आएंगे, आधे पार्ट्स इसमें आएंगे। स्टार फिश है, इसके डिफरेंट तरीकों से बराबर हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के एनिमल्स को कहते हैं सिमेट्रिकल। वो सिमेट्रिकल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स इन विच द बॉडी कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय वन और मोर प्लेन्स। प्लेन्स मींस किस तरीके से आप कट डालते हो। And asymmetrical are those animals whose body is irregular and cannot be divided into two equal parts. We call them as asymmetrical. Now, symmetry is of different types. Symmetry के भी different types होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे asymmetrical, जो हमने अभी भी देख लिया कि the animal cannot be divided into two equal parts because of the random or irregular structure of the body. amoeba हमने देखा, snail, उसमें asymmetrical होता है। Next one is radially symmetrical. Radially symmetrical you can see on the screen, वो एनिमल जिनमें बॉडी पार्ट्स जो होते हैं आर विद अ नंबर ऑफ सिमिलर पार्ट्स रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर। ये सेंट्रल एक्सिस है, इसके आसपास बराबर बराबर हिस्से होते हैं, ठीक है, बराबर पार्ट्स होते हैं। तो अगर इस एनिमल के आप दो हिस्से करोगे, इसको किसी भी तरीके से दो हिस्से हो सकते हैं, ठीक है। इफ एन एनिमल बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, उसके सेंटर में जाना चाहिए, किसी भी प्लेन से आप उसके दो हिस्से कर सकते हो, उसको कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। स्टार फिश ले लो, अभी मैंने दिखाया था, उसको आप किसी भी तरीके से दो हिस्से कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे कि हाइड्रा है सिलेंट्रेट, जेलीफिश है सिलेंट्रेट, इनके भी आप दो हिस्से ऊपर से नीचे साइड्स में ऑब्लिकली ट्रांसवर्सली, तो किसी भी तरीके से आप इनके दो हिस्से कर सकते हो किसी भी प्लेन के थ्रू। ऐसे सिमेट्री को कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। नेक्स्ट वन इज द बाई रेडियल सिमेट्री। बाई रेडियल मीन्स बाई का मतलब टू, ये भी रेडियल है, इसके भी दो इक्वल हिस्से हो सकते हैं, लेकिन दो प्लेन, ओनली टू वर्टिकल प्लेन्स, इसमें आप डिफरेंट नहीं हो सकते, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, एक तो इस तरह से हो सकता है, दूसरा इस तरह से हो सकता है। ओनली टू वर्टिकल प्लेन्स इन द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो इन एनिमल्स में ये गोल मोल के होते हैं, इनमें आपको साइड्स क्या दिखेंगे, एक ऊपर वाला साइड होता है ऑरल साइड जहां पर माउथ होता है, दूसरा नीचे होता है एबॉरल साइड जो माउथ के अपोजिट होता है। इसमें लेफ्ट राइट फ्रंट बैक ऐसा एनिमल ये डिस्टिंग्विश्ड नहीं होते हैं, क्योंकि एनिमल इरेगुलर है या गोल है तो उसमें आप ये चीजें नहीं बता सकते। तो नेक्स्ट अगर हम डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर देखो, दिस इज रेडियल सिमेट्री, किसी भी प्लेन के थ्रू आप हाइड्रा के हिस्से कर पा रहे हैं, इस प्लेन के थ्रू, वर्टिकल प्लेन्स के, यहाँ पर ओब्लिकली, बहुत सारे प्लेन्स के थ्रू आप इसके दो बराबर बराबर हिस्से कर पा रहे हैं। वी कॉल दिस एज रेडियल सिमेट्री। यहाँ पर देखो ये बाई रेडियल है, इसके भी टू इक्वल पार्ट्स बनते हैं, बट ओनली थ्रू टू प्लेन्स which are vertically which are at right angle to each other। तो इसको आप कहते हैं बाइरेडियल, इस वाले को हम कहेंगे रेडियल। आई होप कि ये समझ आ गया आपको। ये रेडियल है, किसी भी प्लेन के थ्रू आप इसके दो हिस्से कर सकते हैं, ये बाइरेडियल है, दो ही प्लेन्स के थ्रू आप इसके दो हिस्से कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइप ऑफ सिमेट्री, दैट इज द बाइलैटरल सिमेट्री, जो हम में होती है, ठीक है। बाइलैटरल सिमेट्री इज दैट टाइप ऑफ सिमेट्री in which animal can be divided into two equal parts by a single plane। एक ही तरीके से उसके दो हिस्से हो सकते हैं, एक ही प्लेन के थ्रू, ठीक है। तो उसको आप कहते हैं बाइलैटरल सिमेट्री इफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ओनली थ्रू वन प्लेन या बाय वन प्लेन। क्यों? क्योंकि उन एनिमल्स में ज्यादा जो पार्ट्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, जैसे हमारे दो बाजू हैं, दो टांगे हैं, दो कान हैं, दो आंखें हैं, तो हमारे जो अगर हिस्से करने हैं एक ही तरीके से होंगे, इस तरह से होंगे, ठीक है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो दो आंखें ऊपर आएंगी, नीचे वाले में कोई आंखें नहीं है, बराबर हिस्से होने चाहिए। तो इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं बाइलैटरल सिमेट्री इन विच द एनिमल बॉडी कैन बी डिवाइडेड टू इक्वल हाफ्स थ्रू ओनली थ्रू वन प्लेन, ठीक है, बिकॉज ऑफ पेयर्ड नेचर ऑफ इट्स पार्ट्स। ये कहां पर देखने को मिलेगा आपको? कॉर्डेट्स में, इकाइनोडर्मेट्स में, लार्वी उनके, और एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स। और यहां पर आपको साइड्स भी डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एंटीरियर साइड होता है,
kept forward during locomotion, जब आप चलते हो सबसे पहले वो आता है, ठीक है। एंटीरियर साइड भी कहते हैं उसको, पोस्टीरियर साइड पीछे वाला, वेंट्रल साइड नीचे वाला, डोर्सल साइड ऊपर वाला। ये एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, वेंट्रल साइड, डोर्सल साइड, ये हो गए लेटरल साइड्स, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सारे सरफेसेस, साइड्स एंड एंड्स आर डिस्टिंग्विश्ड, जो वहां पर रेडियल सिमेट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हो, ये है डॉग, इसके आप दो हिस्से बराबर कर सकते हो, ऊपर से नीचे की तरफ, साइड बीच में नहीं, क्योंकि हिस्से नहीं होंगे बराबर। बटरफ्लाई, इसके भी दो हिस्से कर सकते हो एक ही प्लेन के थ्रू, बायलैटरल सिमेट्री। मैन दो हिस्से कर सकते हो ऊपर से नीचे तक, बायलैटरल सिमेट्री। इसी तरह फिश में भी बायलैटरल सिमेट्री होता है। तो only in these animals the body can be divided into two parts only through by a single plane, ठीक है। आई होप कि सिमेट्री एंड बॉडी प्लान्स आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दीज टू फीचर्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू रिवाइज दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई विल ट्राई टू क्लियर योर कंफ्यूजन इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड आप जरूर लिखिए कि आपको कमेंट में लिखिए कि आपको कैसा लगता है लेक्चर। अगर आपको कहीं पर लगता है कहीं मुझे मॉडिफाई करना चाहें प्लीज लेट मी नो। आई विल ट्राई टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योर विशेस। ओके, बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, थैंक यू।